Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama club. क्या हाल चाल है आपके शाजिया? बिल्कुल ठीक ठाक। आई एम जस्ट चेकिंग। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मेरा बैटरी चार्ज हो रही है कि नहीं, वरना एकदम से फुक करके जाएगा। So even हम्म। though I'm tempted to ask क्योंकि कोई और बात करनी है, but we have such a long list of dramas के I'm think I might just skip But that. I'm not waiting for you to ask me. I have to tell you that Roger Federer retired, and I had tears Oh, in my eyes when he was on court. Lava Cup was his final. I hope I'm pronouncing it correctly. Was his final international competitive tournament. और मुझे सबसे खूबसूरत अच्छी बात, प्यारी बात ये लगी क्योंकि जितने भी opponents थे, they were all wearing the same uniform as him, and वो जो blazer उनके जो ऊपर के जो sweat वो होते हैं, because they wanted to do it in solidarity with his retirement. And वो आंसुओं के साथ जो रो रहे थे ना राबिया, it was just so touching. It brought tears to my eyes because it was 41-year career जिसमें he paid tribute to his fans, his family, and it was very difficult for him. He said कि मैं अपने ख्वाबों में तो इससे ज्यादा रो रहा था, यहाँ तो मैं बहुत अच्छी तरह बात कर रहा हूँ. So I अच्छा. like that. I like the fact that yeah. Tara, it's a tough thing, you know. It's very hard because इन लोगों की बड़ी short life होती है. कल Djokovic was defeated, who was going so strong in the Davis Cup. So it's you have to keep on top of your form and your body takes the wear and tear. So he had लेकिन आज मैंने सुबह एक ad देखा जो मुझे इतना अच्छा लगा, Credit Suisse. So because Federer belongs to Basel where I am living, I think इसलिए मुझे ज्यादा जोश, because यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा हर जगह ट्रैम्स पे हर जगह उनकी तस्वीरें होती हैं, you know. He just comes and he is doing some sort of partnerships with someone or the other. तो आज क्रेडिट स्विस का एड एकदम से मेरे उस पे आया यूट्यूब पे, और मेरे को ड्रामा देख रही थी, बीच में आया. उन्होंने कहा कि चैंपियंस नेवर रिटायर, और दो तीन और उन्होंने वर्ड्स बोले. फेडरर विल नेवर रिटायर. इन द एंड दे सेड बिकॉज़ एटीट्यूड नेवर रिटायर्स. एंड आई जस्ट थॉट दैट वाज सच अ फैंटास्टिक एड. इट वाज वेरी सिंपल. एंड मैंने भी यही सोचा, यू डोंट रिटायर, यू गो अहेड एंड यू डू समथिंग एल्स True. greater, better. But and yeah. He can So still and do all his so much. teammates all, yeah. He can still do Sorry. so much. He can still do He so can do much. so much, yes, yeah, and he will, I'm sure. But it was a beautiful tribute. His teammates were crying. राफेल नदाल और फेडरिक जो तस्वीर थी वो उसका हाथ पकड़े हुए था, और राफेल के आंखों में से आंसू यूं गिर रहे थे. So it was really beautiful. I think बहुत emotional time होता है, and I think to stop playing, I think it requires a lot of courage to take this decision. So I can imagine, maybe I cannot imagine, but I can see कि it must be a tough thing. So दो चीजें जो मैं बात करना चाहती हूँ. नंबर वन, हम नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्यार डैश और कराची. I want you guys to guess in comments below what is there. Fill in the blanks. Dash क्या है? ये लफ्ज जो है वो एक बहुत मशहूर पाकिस्तानी ड्रामे में आया हुआ है. ये लफ्ज जो है एक बहुत मशहूर बॉलीवुड फिल्म में भी है. और सो इट्स प्यार डैश और कराची. और कराची कुछ लोगों के लिए ये है. तो मेक अ कमेंट, एंड मे बी इंस्टाग्राम पे भी हम जवाब दे चुके हैं, या थर्सडे को अगर प्यार कार तो नहीं है प्यार, क्योंकि वो तो आपने लिखा आपको हुआ तो पता इंस्टाग्राम है, पे. आप क्यों ड्रामा कर रही हैं, आपको पता है. अच्छा, एंड सेकंड थिंग, we took out a post about transgender bill on our Instagram. बहुत comments आए, बहुत लोग नाराज हैं हमसे. I think we are going to talk about it. We are considering and we are doing some research, more research, although वो भी research के बाद था. कुछ comments मुझे बिल्कुल समझ नहीं आए, but एक चीज जो मैं बहुत जरूरी कहना चाहती हूँ, we do know the meaning of transgender. We do know that. And पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर का वर्ड जो है, टर्म जो है, वो ख्वाजा सरा के लिए यूज की जाती है. जिन लोगों को आप सड़कों पे देखते हैं, जो होमोसेक्सुअल नहीं होते. सो वी डू नो इट, बट वी आर गोना टॉक अबाउट इट इन डिटेल, एंड या तो इंस्टाग्राम पोस्ट पे या फिर एक वीडियो में. सो आई जस्ट वांटेड टू से दैट उसमें से जितने लोग वहां पे हैं और यहाँ पे भी सुन रहे हैं, बहुत से लोगों ने, क्योंकि इतने कमेंट्स से जिन्होंने कहा था आपको पता ही नहीं है क्या मतलब है, तो यहाँ पे specifically I want to say that the bill is talking about ख्वाजा सरा community. मैं तो मुझे लगता है अब मैं word ही ये use करूंगी to avoid. So in Pakistan, this word transgender is not used for homosexuals all the time, especially in this bill. ठीक है जी, let's move on to our dramas. Okay, going on to मेरे हम सफर, and we have, you're going to name them all. मैं ड्रामा कर रही थी, ड्रामा का अपने थोड़ा सा. We have Vaishi, Darar, मेरे हमसफर,
मेरे हमनशी, वबाल, काला डोरिया एंड बख्तावर. Bachtavar, That's all. Fraud, And fraud. Okay. Okay. I think we can start with and fraud. Meri Shehzadi. How can you forget? My goodness, 9 dramas. Okay, we have to be quick. We'll start with fraud. Okay. So my first reaction to fraud was कि अगर तलाल के कैरेक्टर को मार देना था या वो मर जाएगा तो इधर मैंने प्रोमो नहीं देखा है तो इधर तक लाने की क्या Yeah. जरूरत. मुझे Hmm. कुछ समझ नहीं आई. आई फाइंड इट सो सैड दैट इट वाज सच अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. आपने पूरे कैरेक्टर का इम्पैक्ट खत्म कर दिया. आई वाज होपिंग दैट ही विल गो एंड फाइट एंड ही विल बी द वन हु विल हेल्प माया आगे जाके. बट वो मर गया. एंड बट एक्टिंग बहुत अच्छी थी अली की एंड उनके साथ जितने भी दोनों जो खवातीन थी उस सीन में. इट वाज अमेजिंग परफॉर्मेंस. Going to you, Yes, Shadia. it was really amazing, very real, and nothing. Again, I'm going to say the same thing कि कोई slow motion या ऐसा ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं थी. Excellent acting, लेकिन राबिया, you are so right कि उनके कैरेक्टर को खत्म करना, and not just that, but जो मैं आगे देख रही हूँ, unfortunately अब प्रोमो आप दिखाते हैं तो I will say कि आपने उनकी सास का इतना अच्छा रोल मॉडल दिखाया था, and they're going to switch that role model right now. They are going to turn it toxic. Now I hope it's a temporary thing and she will come back to her senses. Maybe वो हमें ऐसी off track फेंकने के लिए दिखा रहे हो, मुझे नहीं पता. But let's go back to Shan and his daughter, shall we? I was so glad कि शांत ने फाइनली Yeah. अपनी बेटी की बात सुनी और उसने फोन दिया उसको. आई रियली अब जो है ना फ्रॉड इंटरेस्टिंग हो गया है. मुझे मजा आ रहा है अब देखने का. आई लुक फॉरवर्ड टू वॉचिंग इट क्योंकि अब चीजें हो रही हैं एंड द थिंग्स दैट शुड हैव बीन डन यू नो. बट यस ये तलाल का गाना और जो मैं एक्सपेक्ट करी थी सास ऐसी रिएक्ट करेंगी क्योंकि वो हार वाली जो सारी चीज थी वो खुद भी ब्लेम करेगी अपने आप को और वो भी उसको ब्लेम करेंगी हमारी वजह से. बिल्कुल. तो yes, I was loving it, and मुझे इसका शान का एटीट्यूड बड़ा अच्छा लगा towards his mother, और वो उसको एड्रेस ही नहीं करना चाह रहा. उन्होंने कहा कि तुम तूबा से खफा हो, ये वो. उसने आगे की बात करी. उसने कहा कि उसको भेजते वहां और अब उससे आप पूछ ले, मैं मिल चुका हूँ. शज्जी भाई देखो जरा, रट्टा लगा के गूगल के ऊपर. ही सो क्लेवर. लेकिन मुझे थोड़ा सा ये connection. ये लूपहोल लगा क्योंकि अब तक जितनी भी चीजें फ्रॉड में वो देते हैं ना बड़ी वो जस्टिफाइड देते हैं और बड़ा उसको बैक करते हैं चीजों को. इट मेक्स सेंस समहाउ यू नो लिटिल डिटेल्स. ये वाली चीज मुझे थोड़ी सी ऑफ लगी बिकॉज ऐसा अगर मुझे आगे कोई बोलेगा कि इतने बड़े वडेरे या इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या इसका बंदा बेटा है आई विल डेफिनेटली गो एंड चेक आउट कि मैं सिर्फ उसकी बात पे यकीन नहीं कर लूंगी. इनफैक्ट और भी ज्यादा और जाके मैं कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगी उसकी फैमिली को. ये मुझे थोड़ा सा लगा कि ये मुझे फिट नहीं बैठा स्कीमिंग में. बट चलें देखते हैं आगे क्या होता है यू नो. एंड एक्चुअली वो यही है ना जो हमने पहले भी कहा था. आई वाज सेइंग एक्चुअली कि अकेले घर में रह रहे कि भैया की कोई खाला, कोई फुप्पो, कोई ममानी कोई तो होंगी, चाहे कोई और, कोई तो घर का बड़ा होता है. अब सिर्फ एक लड़के से नहीं तय करते ये रिश्ता. और तो या तो वो दिखाते कि वो प्रिटेंड ममानी या खाला लेकर आ जाता, दैट वुड हैव बीन अनबिलीवेबल. या वो नहीं है तो कोई रिश्तेदार ही ले मतलब कोई फैमिली या आसपास की पड़ोसन या कोई या किसी दोस्त की अम्मा लेकर आ जाए. So yes, I think that's all on fraud. We can move on. Yeah. Yes, fraud is closing in on the grand finale and we are looking forward. Okay, next. We can do Darar. कर सकते हैं. तुमने Darar. हाँ, मैंने नहीं देखा, so go ahead. So Darar is interesting. After a long time, I finally started watching it, and मुझे सबसे ज्यादा मजा आ रहा है मोमल को इस कैरेक्टर में देखने का क्योंकि I think अब तक मैंने मोमल शेख को बड़े ना सिंपल एंड यू नो रोने धोने ना. एक तो मुझे अच्छा लगा उनका हेयर स्टाइल चेंज था एंड द वे जो पहली एपिसोड थी उसमें जो दादी के साथ वो करती हैं इट वाज सो रिफ्रेशिंग टू सी हर इन दिस रोल. ऑनेस्टली आई बी वेरी ऑनेस्टली जब ड्रामे का प्रोमो आया था I was not sure if I was okay to watch again, but somehow when I started watching मुझे interesting भी लगा and मोमल की performance मुझे बड़ी अच्छी लगी. हाँ, मुझे बहुत अच्छी लग रही है because it's very subtle and वो अपने आप को वहाँ रोक भी रही है वहाँ जाने से, लेकिन वो उसका her nature is to go towards the wrong. कोशिश करी है रोके लेकिन ज्यादा देर I think रुक नहीं सकेगी. So I was लेकिन अब दाल में बहुत कुछ काला है. हाँ, आपने तो नहीं देखी शाजिया किस, लेकिन वो जो आप क्वेश्चन कर वो इस बार क्लियर हो गया सेकंड एपिसोड में. उन्होंने बिल्कुल क्लियर दिखा दिया कि जिब्रान का जो कैरेक्टर है ही इज इन्वॉल्व विद अदर वुमेन. वो दिखाते हैं दैट ही इज इन अ होटल विद अनदर वुमन और वो उधर से अपनी बीवी को कॉल कर रहा है. तो ये एक तो चीज क्लियर हो गई. वो मोमल के कैरेक्टर पे जो सजल का कैरेक्टर उस पे भी वो पूरा उसने अपना वो लगाया हुआ है एंड वो कहता है बड़ा क्लियरली कि बीवी तो मेरा ख्याल रखने और मेरे बच्चे पालने के लिए है,
मेरे घर का ख्याल हाँ रखना और मेरे बच्चे पालने के लिए मैं तो सिर्फ अपनी जात से मोहब्बत करता हूँ। तो उन्होंने बड़ा क्लियरली उसके कैरेक्टर को बता दिया। आई वांट टू मेंशन उमर आलम आल्सो। उमर आलम वैसे ही ट्रेंड कर रहे हैं तमाशा की वजह से और बड़े उनका आजकल चर्चा है, लेकिन आई वांट टू अप्रिशिएट हिम फॉर हिज परफॉर्मेंस इन दिस एपिसोड। जो सेकंड एपिसोड है उसमें दिखाया कि वो उसको अगवा करवा लेता है और उसको मारता है। उफ, क्या मारा है उसको, क्या पीटा है। एंड उमर्स परफॉर्मेंस वाज रियली रियली गुड एंड इट वाज वेरी इम्पैक्टफुल। और उसके बाद भी जब वो घर आता है तब भी जब वो सोच रहा होता है वो भी इट कनेक्ट्स विद यू एंड इट मेक्स यू फील फॉर हिम, यू नो। सो आई वांटेड टू मेंशन दैट। अदर देन दैट मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है ये चीज, मुझे लगी कि एक साइन है भाई कि तमाम औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, कि अगर आपका बहनोई या कोई मर्द जो है दोस्त का मियाँ भी छुपा के आपसे बात, अपनी बीवी से छुपा के आपसे बातें कर रहा है, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। क्योंकि वो क्या करता है, डिनर पे जाते हैं तो जानबूझ के वो अपनी बीवी के कपड़ों पे गिरा देता है सालन, कि वो बाथरूम जाए और फिर वो मोमल शेख से उसकी स्टोरी सुन सके। सो देयर आर लॉट ऑफ, आई फील, इंटरेस्टिंग मैसेजेस दैट दे आर शोइंग। अमल खान का कैरेक्टर जो है, अमर खान का, अमल कह रही हूँ, उनका कैरेक्टर टू स्वीट है। आई विश इतना स्वीट नहीं दिखाया होता, इट जस्ट टू स्वीट, थोड़ा सा कम कर देते। डाइजेस्ट करने में कहीं कहीं मसला हो जाता है, दैट शी इज टू गुड टू बी ट्रू। वो आती है मोबाइल और वो कहती है कि कल से तुम्हारे मियाँ ने मेरा जो है ना जीना हराम किया, 4 फोन कर चुका है कि जाओ तुम्हें वो करो तुम्हें करो, एंड शी टेक्स इट सो नॉर्मली। आई वुड हैव बीन लाइक, व्हाई, आई डोंट नीड somebody to babysit me, मेरा घर है, मुझे घर चलाना है, why is he sending you, तुम घर जाओ। Why is these things, yeah, so it's interesting, yeah. shouldn't be happening. Yes, I agree. And वो because she has been working also, तो इसलिए उसके थोड़ा सा वहाँ smartness उसकी काम आनी चाहिए, सिर्फ घर पे बैठ के नहीं कर रही है। Yeah, I think that's it. You've said what had to be said. Yeah. I'm going to watch the आपने next. वैशी देखा है? We can do वैशी now. Please go ahead and do Veshi. And I'm sorry, I'm really sorry to all the followers and audience that I have not watched. Let's do Yeah. मेरे हमनशी पहले कर लेते हैं. Okay. All right. I like the twist. एक तो मुझे टाइम लैप्स बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज अब हमें डाइजेस्ट करने में आसानी हुई है कि ठीक है अब यू नो इन लोगों की लाइफ सेटल हो गई है। और जो फ्लैशबैक जो दिखाया था वो भी बड़ा अच्छा था कि हाउ शी सेटल द मैटर, मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी। और राबिया, हर दफा हम देखते हैं कि खजिस्ता ही अपनी आवाज उठा के और उन सारे मर्दों को और सारी ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल जो भी उनके कल्चर्स हैं और जो भी उनका, उसको वो चैलेंज करती है और बड़ी अच्छी तरह चैलेंज करती है लॉजिक से, क्योंकि मोरे भी कहती है कि ये तो हमेशा होता आया है, फिर अब नहीं होगा इस तरह, तो जाके दाजी को कह दो। तो आई लाइक तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है एंड आई वाज सो हैप्पी and again Heba Bukhari is doing such an amazing job. It is such a treat to watch her. You feel Khajasta's pain, her journey, and you connect with her. She's doing an amazing job and I'm so glad that sorry 1 minute, I wanted to say कि राबिया के जो भी दिल में जो भी राबिया के वो थे ना वो पूरे हुए, क्योंकि वो जो डायलॉग बोला था ना खजिस्ता ने, you know which dialogue I'm going to say, मोरे ने कहा कि तुम्हें उस डॉक्टर की याद आ रही है, तो उसने कहा कि अगर मैं अपने दिल को फॉलो करती तो देखिए ये लड़की जो है ना, जो दूसरी बच्ची आती है कि मेरा मेडिकल में एडमिशन हो गया है, ये लड़कियां फिर नहीं जा सकती थी कॉलेज अगर मैं अपने दिल को फॉलो करती। तो मैंने कहा चलो, राबिया ने कहीं ना कहीं राइटर से बात करी है। नहीं, मैंने राइटर से नहीं बात की। फॉर मी इट जस्ट मेक्स सेंस कि खजस्ता ये करेगी बिकॉज उसका कैरेक्टर इतना रिस्पॉन्सिबल दिखाया है उन्होंने। जिस तरह हादी का कैरेक्टर क्या रिस्पॉन्सिबल, एक डिफरेंट काइंड का इंसान दिखाया, तो खजस्ता को एक रिस्पॉन्सिबल लड़की दिखाया था एंड somebody who raises a voice you know at the wrong things. So I was so glad कि उसकी शादी अमरोज से नहीं हुई। और फिर उसके बाद का भी बहुत ही प्यारा सीन था, लाइक यू नो इतनी कोई ज्यादा चीजें नहीं भी हुई, लेकिन एपिसोड ऐसी थी कि आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा था। यू वर enjoying watching it कि वो उसका हॉस्पिटल बन गया है, वो अमरोज उसको ड्रॉप कर रहा है, वो उसके अमरोज का बेटा है दरअज़ई जिससे वो बात कर रही है और उसको डांट रही है, उसको बोल रही है। इट वाज रियली very endearing to watch all of this and you know and शाजी also इन सब का जर्नी था ना जो हमने देखा है। सो जैसे हाला हमजा का जब बेबी हुआ, एक जर्नी का नेक्स्ट स्टेप होता है, हम काइंड ऑफ कनेक्ट हो जाते हैं कैरेक्टर से। तो इसी तरह जब खजस्ता का भी एक जर्नी, अमरोज का भी चल रहा है, तो हमें अच्छा लग रहा है कि हमने उनकी जिंदगी की सेकेंड स्टेज देखी है। ट्विस्ट अच्छा था, हसन को मिलवा दिया उन्होंने खजस्ता से। I was loving। और देखो दादी और मोरे का भी जर्नी है कि मोरे कह रही तुम्हारे अस्पताल में एक नया डॉक्टर आया है, उसने कहा कि हाँ बस आपको उससे मेरी शादी करानी होगी। So you know they have also crossed
many milestones rather than getting her married to Amroz. अब उन्होंने accept कर लिया कि ये बच्ची अब पूरा अस्पताल इसने सेटअप किया है, ये मैनेज कर रही है. और डॉक्टर बाहर से आया है, but और डॉक्टर बाहर से आया, सो हाँ, इतनी इतनी अच्छी बात बोली है कि नाउ दे आर ओके फॉर हर टू मैरी आउटसाइड देयर फैमिली, यू नो. सो yes, yes. डॉक्टर हादी का दरवाजा खुलेगा, हम्म, डॉक्टर हादी आएंगे खुल वापस. गया दरवाजा. कार्डियक सर्जन अब आ गए हैं वो. हसन की रिडेम्पशन ऐसे ही होगी कि वो खजस्ता और हादी को मिलवा देगा. बिल्कुल बिल्कुल. एंड I'm glad actually in a way, although we were complaining कि हसन को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अभी भी खजिस्ता को, but I think वो बहुत क्विक टर्नओवर होता because there was a lot of negativity in Hassan. So over time जब उसने देखा है कि उसके भाई ने सफर किया, and I'm glad कि दिखा दिया कि अच्छा चलो he has settled also, उसकी शादी हो गई. Now what he will do will count. You are so right. Yeah, but I had one issue. जो वो अपनी बीवी से बात करता है उस पे ब्रिज पे, जब वो बात करता है, वो कहता है कि हम लोग बाहर जाएंगे और हम बेटे को यहीं, बेटा या बेटी जो भी है मुझे याद नहीं. हाँ, वो कहता है ये सही है. I was just like, no, it was Yes, not okay. You suffer. not okay. And if you Yeah. are not, अगर तुम्हारी मजबूरी नहीं है तो तुम क्यों छोड़ के जाओगे अपने बच्चे को? So Yeah. ये चीज नहीं अच्छी लगी मुझे. नहीं लगा कि वो जो उसके माँ बाप ने किया उसको इस तरीके से जस्टिफाई किया, because there was clearly an emotional toll that his life took, you know, Yeah. he as a person took. And शाजिया चले यहाँ तो हसन की जिंदगी में कुछ और कितना बुरा उसने किया अपने भाई के साथ, खजिस्ता के साथ, वो तो लकीली Yes. बच गए, और हसन इस चीज से निकला है. What if somebody does not come out of it? तो अपने आप को मारने वाला था. Remember the gun scene? वाला था. अच्छा, और Rabia, on a deeper level, what we have to understand is, and I'm glad you brought it up, कि माँ बाप आपके, हमारे वालिदैन बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जिनको हम बड़े होके, ठीक है, एंड इट्स वेरी नाइस दे शोड दैट, हम कहते हैं कि अच्छा इसलिए उन्होंने किया था, हम समझते हैं. लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीजें होती हैं जो हम कहते हैं कि नहीं, दे आर आवर पेरेंट्स, बट थोड़ी सी फ्लॉड हमारी जिंदगी रही है, तो हम इसको बेहतर करेंगे बाय टीचिंग आवर चिल्ड्रन और टीचिंग आवरसेल्व्स नॉट. एंड उसमें कोई खराबी नहीं है. वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड दैट्स हाउ वी लर्न. तो यू आर टेकिंग योर पॉइंट. ही शुड हैव सेड कि नहीं, मैं, उनकी मजबूरी थी, आई हैव एक्सेप्टेड इट, लेकिन हमें ये करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. Should we move on to Vahshi now? Oh, we are going very fast. Rabia is not losing track. Okay, Vahshi. ओके, ज्यादा नहीं है. मैंने हफ्ते में जो पहली एपिसोड आई थी वो नहीं देखी, मैंने सेकंड देखी, जिसमें बच्चे जवान हो गए हैं. कोमल मीर हैं और खुशहाल जो हैं वो मेन कैरेक्टर्स कर रहे हैं. ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है. आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड स्टिल the chemistry, the connection and dynamics of the relationship and the characters. दो तीन मेरी ऑब्जर्वेशन है. मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से खुशहाल का जो कैरेक्टर है, ऐसे बच्चे जब वो इग्नोर होते हैं और जब वो वर्नेबल होते हैं तो बाहर के लोग कैसे उनको पकड़ लेते हैं, क्योंकि उसके जो गलत किस्म के इन्फ्लुएंसर्स हैं, लोग हैं, अब वो उसको ड्रग्स पे और स्मोक पे लगा रहे हैं. उसका एक अच्छा दोस्त भी आता है बट वो उसको भी हटा देता है, क्योंकि उसका सुतेला बाप उसको पैसे नहीं दे रहा है बाहर जाने के लिए, अपने सगे बेटे को दे रहा है, इसको नहीं दे रहा. ही सेड, एंड दोनों की लग नहीं रही है. अच्छा, सुतेला बेटा जो सगा बेटा है उसका, वो कहता भी है बाप, लेकिन वो नहीं सुनता. तो ये मुझे एक बड़ा अच्छा लगा कि, एंड I'm just scared. I was hoping कि कुछ अच्छा होगा, but मुझे लगता है कि we are going to see a lot of negativity from खुशहाल's character. डर मुझे ये कहीं वो कोमल के कैरेक्टर को पकड़ के अगवा ना कर ले, उससे जबरदस्ती शादी ना कर ले. ये मुझे अच्छा लगा. दूसरा जो बाबर अली का कैरेक्टर है, जो सुतेले बाप का कैरेक्टर कर रहे हैं, वो इट इज सो इंटरेस्टिंग. शाजिया, ही इज नाइस विद एवरीबडी. ही इज नाइस विद एवरीबडी. वो अपने भाई की बेटियों का इतना ख्याल रखता है. The only person he can't stand is खुशहाल's character, जो उसका सुतेला बेटा है, and he cannot understand कि मेरी भी इसमें कोई गलती है. वो हर चीज उसके ऊपर डाल देता है कि ये बदतमीज है, इसको बात करने की तमीज नहीं है, ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता है, और कोई उसको समझा भी नहीं रहा है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम वन साइड ऑफ द स्टोरी दिखा रहे हो. अच्छा, जो दूसरा बेटा है वो माँ की बहुत कदर करता है, ये पॉजिटिव दिखाया. कोमल के कैरेक्टर को बहुत अपलिफ्टिंग, बड़ा स्ट्रॉन्ग और बड़ा वो दिखाया था. शी इज वेरी क्लियर, शी वांट्स टू स्टडी, शी डजंट वांट टू गेट मैरिड. But I wish, how do I say it? It's just, ये कैरेक्टर्स आप दिखाते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी आप लाइटर नोट लाने के लिए या किसी को एक्स्ट्रा चर्पी बनाने के लिए ना कैरेक्टर को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं. इट बिकम्स इरिटेटिंग टू वॉच, बिकॉज वो लड़की दिखाए एम्बिशियस है, बट साथ ही वो आके अच्छा, रुखसती हो गई है, बहन की शादी है, बहन की शादी हो गई है, रुखसती हो गई है, तो वो आके अपनी
चचा से अपनी माँ से कंप्लेन करिए, मुझे आप लोगों से एक शिकवा है। क्या शिकवा है? मैं अपने किसी दोस्त को नहीं बुला सकी, आपने वादा किया था, आप इतना वो क्या करेंगी? It just does not make sense. If you were to complain before. Why would you complain after the wedding? So you're trying to show this lighter side, this kind of, I don't know, bachkana side of the character, but it just does not make sense. It compromises on the whole character. So I wish they would not do it. और बिला वजह की गुफ्तगू उसमें डाली हुई है माँ के साथ जो वो कर रही है. कोमल इज डूइंग अ गुड जॉब. आई हैव टू से कोमल मीर इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. शी इज डूइंग अ गुड जॉब. बट द जो चीज उनके कैरेक्टर को दी जा गई है वो सेंसिबल, लंबे लंबे डायलॉग्स विद द माँ, फजूल के लंबे लंबे सीन्स कि वो बोल रही है कि अच्छा मेरी तो आपकी शादी क्यों करनी है. इट्स जस्ट सो आई जस्ट विश कि ये नहीं किया होता. इम्पैक्टफुल रखते, टू द पॉइंट रखते कि वो पढ़ाई करना चाहती है, उसको शादी नहीं करनी है, and she's willing to do anything for that. Yeah, that's all that I will say about Reshi this week. Okay, so we will see things get worse before they get better, obviously. ठीक है, I'll watch next week. मेरी शहजादी. मेरी शहजादी, जी. उर्वा हुसैन. Yeah, and looking very pretty. Yeah. So although we know sort of where the story is going to go, लोग कह रहे हैं, and I think the writer has also, director has said कि it is based a little bit on Princess Diana's story. We are still interested because of the way it is being produced and carried out, and of course I think characters में कुछ जान डाली है राबिया. One episode था, I understand बहुत ज्यादा आगे नहीं गया, लेकिन हाँ, go on. नहीं तुम बोलो. मैं कह रही हूँ कि मुझे कवि साहब के कैरेक्टर में एंड शमीम हिलाली के कैरेक्टर में और उनके जो भाई हैं, उनके जो अब्बा हैं, उनके भी कैरेक्टर में दैट ही इज एक्चुअली बेबस, ही डजंट नो व्हाट टू डू, मुझे उन सब में कुछ जो है ना, आई feel okay, there's something to play with over here, there's potential which I want to see release later on. मतलब they are not blank canvases, जरा काफी उनको दिखाया है कि वो किस चीज में फंसे हुए हैं. ये मैंने भी पढ़ा है और सुना है कि अबाउट द स्टोरी बीइंग अबाउट प्रिंसेस डायना's लाइफ. तो मुझे समझ नहीं आ रही है कैसे करेंगे. सो आई एम क्यूरियस एंड इंट्रिग्ड टू सी द स्टोरी गोइंग फॉरवर्ड एंड सीइंग ऑल ऑफ दिस. अगर सिर्फ ये लिखा होता कि उनसे इंस्पायर है तो मुझे समझ आती है, बट उनके ऊपर बेस्ड तो बिकॉज हालात एंड और डिफरेंट है, यू कैन नॉट कंपेयर. सो आई होप इट डजंट बिकम अ जोक गोइंग फॉरवर्ड. चले क्या होता है. मुझे एपिसोड बस ओके लगी. Honestly speaking, it could not grab my attention that much क्योंकि कुछ ज्यादा हुआ नहीं और कैरेक्टर्स कुछ बिल्कुल ही ना इतने उठ के नहीं आए जितने उठ के आ सकते थे, ये मुझे लगा. लेकिन जो चीज रिफ्रेशिंग थी वो कवि साहब एंड शमीम हलाली का कपल जो आया. So much fun to watch it. So much fun to watch it, And then Atika Odo. And the character, Rabia, उनके character शमीम हिलाली is so bitter and so angry. और वो देखो जो झुमके जी उसने उठा के दिए उसको, वो मुझे नहीं स्ट्राइक किया till he told her कि तुम क्या कर रही हो, तुम अपनी उसकी एक्स वाइफ को तुम भुलाना नहीं चाह रही हो, तुम चाह रही हो because she wants कि बस उसको जो है ना मारती रहे किसी ना किसी यादों से. एंड वो जो है ही इज लुकिंग एट इट. कवि साहब का कैरेक्टर इतना मुझे अच्छा लग रहा है, इतना वेल रिटन, मैच्योर एंड सो कंपैशनेट ऑल्सो, कि वो उनके साथ भी, बेटे के साथ भी बाहर आके उनको छोड़ता है, कहता है कि नहीं भाई तुम्हारी वो जो है वो नहीं समझ रही हैं, क्या करें, वो नहीं छोड़ेंगी तुम्हें. सो मुझे ये दैट्स व्हाई आई थिंक आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग. I just thought कि थोड़ा सा शायद ज्यादा तेजी से मूव करते या कुछ ज्यादा वो चीज दिखाते, बट ठीक है, हर ड्रामे का और हर स्टोरी का अपना एक पेस होता है जिसपे चलते हैं. अतीका ओडो का कैरेक्टर मुझे बहुत इंटरेस्ट कर रहा है क्योंकि जितना मैंने बाद में सोचा एपिसोड का, मुझे लगता है शी इज बिहाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें आगे पता चलेंगी. एंड सो आई एम क्यूरियस टू सी दैट कि वो किस तरह मैनिपुलेट कर रही है चीजें, किस तरह वो चीजों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगी. एंड उर्वा की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी. माफिया का कैरेक्टर वही टिपिकल उन्होंने दिखाया कि वो लड़की है जो डर जाती है एंड ऑल दैट एंड लॉस्ट एंड सपनों की है. आई विश वी मूव आउट ऑफ दिस. यस एग्जैक्टली, या बिकॉज बाकी सबको जब आपने इतना सोच के लिखा है, आई फेल्ट दे वर वेल स्क्रिप्टेड, सो आई वुड रियली लाइक कि यहाँ भी आप थोड़ा सा में जान दें. Just because it is Urva, I want to see, because she's capable of so much more, and we've seen that in Mushk, for example. So I would like to see more over here. And she's looking very pretty, mashallah से. I just wish जब उसको उठती है तो मेकअप नहीं हुआ होता, कम मेकअप रखते, because मस्कारा काफी सामने नजर आ रहा था. Blush नजर आ रहा था. योगा करते हुए. So I just wish Ali Rahman की look change हुई है. I want to appreciate that. We've been seeing him in the same look for a very long time, so that was nice.
to see him. I'm liking the friend also. उनकी जो friend है, मुझे उनका character, I think this is her first time on screen, if I'm not mistaken. मैंने नहीं देखा उनको मैंने भी पहले. नहीं देखा, और उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी, सॉलिड परफॉर्मेंस थी. इट वाज नॉट दैट कि Yes. आपको Yeah. लगे कि कॉम्प्रोमाइज्ड है. काफी इंटरेस्टिंग डायनामिक्स है. आई थिंक एज द एपिसोड मोर एपिसोड्स विल कम, वी विल बी मोर इंटरेस्टेड इन द ड्रामा. अभी थोड़ा सा एक दो शायद ऐसे ही नॉर्मल चले. अब उनको या तो जहर दिया या उनको कोई बीमारी तो हो गई है, उसके ताया को, दानिया जैसे उनका खून निकल रहा है. सो अब वो क्या I है, did think of Zahir. Why did you think of Zahir? बिकॉज मैं अतीका उडो के कैरेक्टर से ना वो मुझे उनके ऊपर बहुत शक है कि हाँ. ना, अगर आप उस पे लेके जा रहे हैं तो फिर क्वीन भी तो, सॉरी टू से नॉट दैट कि क्वीन मस्ट हैव डन दैट, आई डोंट वांट बट ये मन से एडिट होगा. मतलब सो बट अगर प्रिंसेस डायना की कैरेक्टर की लाइफ से वो है, तो फिर वो फीमेल कोई फिगर होगी ना जो कंट्रोलिंग होगी बहुत, जिस तरह. तो अगर मैं दबे लबों में कुछ कहना चाह रही हूँ तो इसलिए बोल रही हूँ मैं. तो मुझे ये लग रहा है, एंड मुझे लगता है कि जो ताया है, ही इज द वॉइस ऑफ रीजन ऑल्सो. वो शायद आवाज उठाते दानिया के लिए या बोलते. उन्होंने अभी भी बोला अपनी अपनी भाई की बीवी को, जो छोटे भाई की, कि एक मरी हुई औरत तुम्हें कैसे थ्रेटन कर सकती है, तो बिल्कुल. वो एक चीज है जो बीच में मसला कर सकते हैं. तो मे बी पावर की कोई गेम है जो आगे जाके पता चलेगी. I hope he sticks around because I'm liking his balance. He will balance Atika Odo's character, so I want to see that. Yeah, so let's see. ठीक है. Okay, so we have Kala Doria. we have Kala Doria that Shazia has watched. टिक 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 जल्दी 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 राबिया ने थोड़ी सी कहानी सुनाई थी, तो बस मुझे यही है कि कहानी ठीक है, चल रही है आगे. हमने सबने बहुत दफा देखा ये खानदानों में कि लड़ाइयां हुई भी होती हैं एंड other people are bearing the fallout. I'm very happy कि वो घर से निकल गई. वो कह रही है मैं तो जा रही हूँ अपने मियाँ के पास. जाएंगी नहीं, इतना नहीं ख्याल के हो जाएंगी. नहीं जाएंगी, कहाँ जाएंगी फिर? कहानी नहीं, गायब हुई है वो. कहानी आगे नहीं जा सकेगी अगर वो जाएंगी, तो आई डोंट थिंक वो जाएंगी, उनको रोकेंगे. सो फॉर मी काला डोरिया इज a bit of disappointment, but at the same time some interesting things happen. Is disappointment because I feel जो तुमने पता नहीं नोट किया नहीं क्या, dialogues, I feel the quality of dialogues Terrible. is terrible. मैं कीज लेकर आता हूँ, मैं की लेकर आता हूँ, ये कौन बोलता है आजकल? मैं चाबियां लेकर आता हूँ, लेट मी गो गेट द कीज. आई डोंट नो, हम उर्दू इंग्लिश करते हैं. मैं नहीं, पता नहीं I मुझे. was trying to start it on an up note, लेकिन तुमने बिल्कुल ही उसको जो है ना वो, but it's true, yeah. Okay, so the thing is that going forward, Shazia, I've decided I'm going to be very balanced as much as I think, and say what I really believe in, because if something is not right, it's not right. And when we know the capability of the entire team, then why we are not being honest to ourselves and to them if we are not saying the right thing. Yes. So as I said, it's a combination of a lot of disappointments and some good things. So disappointment is the quality of the dialogues and the story has gone down for me. Production still, this time, even performances, I'm really sorry. Some were very good performances. Some were not that great performances, and it was difficult to watch it at some point. It was difficult to. Can I just say one thing? तुमने कीस का कहा, मुझे जो एक अल्फाज जो बार-बार खटक रहा है ना, that is the word चीपड़ा, which is being used again and again and again, and that's not a word that आजकल use नहीं होता. ये बहुत पुराने जमाने का अल्फाज है, वो अब नहीं use होता है. तो आप अपनी स्क्रिप्ट में से प्लीज, अगर अभी भी शूटिंग कर रहे हैं तो प्लीज निकाल दें, because it is actually very annoying. And secondly, what you are saying, without trying to be very critical, अगर आप ये कहें कि इसके व्यूज जा रहे हैं ऊपर एंड लोग ये देख रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगी कि क्वालिटी कॉमेडी होती है जो मैंने भी देखी है, राबिया ने भी देखी है, आप लोगों ने भी देखी है, ठीक है. एंड इफ वी आर गोइंग टू से कि नहीं अब मैसेज को यही देखना है, आई डोंट थिंक इट्स फेयर, बिकॉज योर एंटरटेनमेंट विल चेंज द वे पीपल look at life and the way they observe comedy. And if you are going to give them substandard comedy, they will watch it और वो आदी हो जाएंगे उसके. आप क्यों उनको किसी substandard चीज का आदी करना चाह रहे हैं? क्योंकि हम इससे बहुत बेहतर कर सकते हैं. और हम तुम और इस जलेबी are prime examples of exactly what Shazia said, where the comedy was great, it was funny, we enjoyed it, and it had so many messages. So in on a lot of levels, Kala Doria जो है वो, I wish that they would improve. एक्सप्रेशन वाइज बहुत से आर्टिस्ट की मुझे लगता है या तो बहुत ज्यादा ओवर एग्जैजरेटेड है जिसकी जरूरत, प्लेट सटल. आजकल नई कॉमेडी वो देखते जो इतनी एग्जैजरेटेड,
या फिर हम Yeah. वही रेपिटेशन देख रहे हैं एक्सप्रेशंस की जो हम बहुत पहली दफा देख चुके हैं, एंड एक नहीं मल्टीपल कैरेक्टर्स के साथ, आई वुड से दैट. सो प्लीज, दिस इज समथिंग, अगर इट्स स्टिल बीइंग शॉट, maybe you guys can look at it in a positive manner rather than just taking it as negative criticism from our side. एक चीज है. Now, अच्छी चीजें क्या है? अच्छी चीजें ये है कि it is so important to show the relationship of an older couple, जो उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाई है. यहाँ तो दादा और दादी जो है वो अलहदा रह रहे हैं. बहुत जगह पे शादियां मैंने देखा वो एक घर में रहते हुए भी जो दादा दादी होते हैं या जो ओल्डर कपल होता है, वो चीजें नहीं कर पाते, वो नहीं अपनी जिंदगी को ऐसे जी सकते जैसे वो चाहते हैं, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल. अब जैसे दादा है वो डिपेंडेंट है कि वो पोता आएगा तो वो लेके जाएगा. सो इट्स अमेजिंग and a lot of good points. It's talking about a lot of good points, and it's so caring to watch it. जब जाती हूँ हॉस्पिटल समीना अहमद खालिद अनब के कैरेक्टर को देखने, बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है. Such a nice, and you really feel for them, I was really feel. और फिर दादा जब उस्मान खालिद भट्ट के कैरेक्टर को बोलते हैं गले नहीं लोगों के, वो उसको गले लगाते हैं. Such a beautiful moment, Yes. बट वो अच्छी बात है. भाभी और देवर का तो मुझे बहुत अच्छा लगा है. भाई और भाई दोनों की जोक, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ऑरेंज शर्ट पे वो कमेंट करते हैं कि ट्रैफिक का सिग्नल लग रहे हो या पता नहीं वो. सो वेरी नाइस. एज यूजुअल साइमा चौधरी जो है वो, साइमा अकरम चौधरी जो है वो पॉजिटिव बात करती है. उन्होंने सास और बहू की बड़ी अच्छी रिलेशनशिप दिखाई है. सो आई फाइंड ऑल दीज थिंग्स इंटरेस्टिंग टू वॉच, और मजा भी आता है, बट वो मजा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है by some overacting, some exaggerated expressions, not that great quality of production, and script that could have been better. Yeah, I think I'm just watching because of Sameena Ahmed and Khalid Anam right now, frankly, and because I have to review it. I would not have watched this level of comedy unless I have to watch it as a job, and because आप लोग देख रहे हैं इसलिए. तो वो थप्पड़ नहीं समझ आया जो मुन्ना जो है, मुन्ना भाई जो है वो लगाते हैं अपने बेटे को, बिकॉज इतना वो माँ को, दादी को ही लेकर गया था दादा को ले जाने, और अब दादी के गुस्से में. बट आई डोंट थिंक वो छोड़ के जाएंगी. जो पुप्पो है उनका कैरेक्टर भी मुझे अच्छा लग रहा है कि वो शी कीप्स कि मैंने देखा सब कुछ, एंड वो मैं तो दोनों तरफ की हूँ, मैं तो जा रही हूँ. She said this now. Yeah. So it's interesting. We'll see how it goes on forward. Yeah, let's see. I hope it improves. Okay. So, जी, वबाल. हाँ जी, आप स्टार्ट करें. मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप थप्पड़ों की बात कर रहे थे, यहाँ भी ठीक ठाक थप्पड़ पड़ गए थे. कहानी की जो उन्होंने प्लॉट रखा है ना, वो मुझे जरा, अनम को जो ये लोग दोष दे रहे हैं, मुझे थोड़ा वीक लग रहा है. क्योंकि अगर आपकी बेटी किसी और बच्ची को हेल्प कर रही है घर से भागने में, तो यस इट इज रॉन्ग, और आपको, लेकिन आप उसके ऊपर शक नहीं करेंगे कि आप उसको घर पे बिठा दें और उसको कॉलेज ना भेजें कि वो कोई ऐसी हरकत कर रही है which is wrong, which is ethically wrong or morally wrong. आप जरूर यू विल गेट एंग्री, लेकिन आप उस पर थप्पड़े नहीं मारेंगे, उसको मारेंगे. और ना मोहल्ले वाले जो हैं वो आपकी बेटी को बुरा भला कहेंगे. सबको पता था कि थाने में, और सबको पता था कि वो वापस आ गई है. सो मुझे वहां थोड़ा सा वीक लगा प्लॉट के, क्यों किया उन्होंने ऐसे. अच्छा, मैं काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा फैमिली जो है वो इतनी, अब्बा भी सिंपल से हैं और वो सिंपल तरीके से रहते हैं, उन्हें कुछ इतना नहीं है. तो उनको ये डिसअपॉइंटमेंट है दैट हाउ कैन शी डू दैट, हाउ कैन डजंट शी हैव द सेंस ऑफ राइट. उसने हमसे झूठ बोला, उसने उसकी माँ से झूठ बोला कि आपकी बेटी नोट बना रही है, एंड देन दे फील दैट मे बी शी डज नॉट हैव इनफ कैपेबिलिटी टू टेक द राइट जजमेंट कॉल एंड डू दैट. लगता है ये सब थॉट्स प्ले कर रही हैं फॉर हर टू गेट स्केयर्ड एंड टेल एंड से कि नहीं तुम घर पे बैठो. थोड़ा बहुत मुझे लगता है which they said and I like that, क्योंकि जब वो आपस में बात कर रहे थे तो उनकी अम्मी ने कहा, अब्बा ने भी, कि हाँ ये माहम की तरह नहीं है, ये बेवकूफ है, लोगों की बातों में आ जाती है. So I understood the reasoning, their reasoning was correct, but मुझे उनका रिएक्शन थोड़ा सा ज्यादा एक्सट्रीम लगा towards her. Definitely it does not make sense. I would have said कि वो डांटते, वो करते, या उस पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देते कि तुम ये नहीं करो, होगी. बिल्कुल उसको कॉलेज जाने से नहीं मना करते, बट आई वाज जस्ट सेइंग कि मे बी ये थॉट प्रोसेस है. लेकिन मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, समझ नहीं भाई कौन होते मोहल्ले वाले आके उसको बोले अनम को बुलाओ, अनम हेलो, अनम को क्यों बुलाए, वो सही खाला भी हो, कुछ भी हो, रिश्तेदार हो, जो वो अनम को क्यों बुलाए भाई, और अनम क्यों आपको जवाब दे, उसके माँ बाप हैं.
सो शगुफ्ता ने पीछे से चाबी दी हुई थी ना उनको तो। इवन देन शगुफ्ता जो भी हाँ चाहती है, बिल्कुल। माँ ने या क्यों बुलाया अनम को, या वो कैसे आके किसी के घर बोल सकती है इस तरीके से कि हाँ, वो करो, यू नो। अनम ने भी सही जवाब दिया उनको कि आप जाएं, जो मुझे भुगतना था मैं भुगत चुकी हूँ, अब हाँ आप जाएं घर से। सो दैट अच्छा भाई, वो गुस्से में आ गए फराज साहब। आई लाइक दैट सीन बिकॉज यू कुड सी हिम रियली एंग्री एंड गिविंग इट टू देम। तो मुझे वो अच्छा लगा, एंड बिकॉज वो पुलिस स्टेशन में खड़ा हुआ था, उसने सारी कहानी सुनी थी, सो ही न्यू कि क्या हुआ था, और उसमें कि 5,000 रुपए, आई थिंक शी सेड 5,000 रुपीज लिए थे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। बट बाकी कहानी उसने सब सुन ली। शुक्र उनकी वो आ गई फ्रेंड सही टाइम पे, अंबर, और उन्होंने सब क्लियर आउट कर दिया। सो व्हाट आई दैट वाज लाइक गुड। वाज दैट कि उन्होंने ये दिखाया, पुलिस वाला उसको पहले शर्मिंदा करता है कि तुमने इस तरह किया, बाप का ख्याल नहीं है, इज्जत पे वो, देन ही सेज कि उसने तुमने उससे कुछ कुछ देयर मस्ट बी सम एक्सचेंज। हाँ दैट वेरी गुड पॉइंट। एंड जब वो कहती है, क्योंकि फिर उसके बाद उसने बोला अगर तुमने पैसे लिए तो फिर तुमने कुछ और भी किया होगा, तुम और भी इन्वॉल्व होगी। तो आई लाइक द बिल्ट अप दैट दे हैव क्रिएटेड हम्म टू काइंड ऑफ जस्टिफाई कि पुलिस उसके पीछे क्यों पड़ी हुई है इस एपिसोड में। मुझे ये हम्म अच्छा लगा कि उन्होंने हम्म, शक डाला। बट यस ऑफ कोर्स उसकी दोस्त आ गई, शुक्र है। और उस हाँ अनम को आपने जाने दिया। आई थिंक जो माँ ने मारा, मुझे वो भी जस्टिफाइड लगा, क्योंकि रियली ओके। yeah, I was okay here because I feel this actually happens जब माँ, because यार see, ये सिर्फ एक हाँ, it probably does happen, ये yeah. एक वक्त का नहीं है। अनम उनको बार बार जज कर रही है, एंड हम्म बाप फिर भी थोड़ा हौला हाथ रखते हैं। माँ और जो बहन है, और स्पेशली माँ समझ ही नहीं पा रही है कि यार ये किस किस्म की और लड़की है, बेटी है, इसको हमारे कंडीशंस का वो नहीं है, ये जो चाहे इसका दिल करता है, ये बगैर हमारा ख्याल रखे पैसे मांगती है, स्पेंड करती है, इसको हमसे हम्म, कोई कंसर्न नहीं है, शी सो सेल्फिश। हाँ ऑन टॉप ऑफ इट इसने हमारी इतनी बदनामी कर दी है, अपने बाप को हम्म, भी थाने ले गई है। तो वो माँ का जो इतने अरसे का हाँ, ना, दैट ऑल केम आउट. And maybe that came out. that made Anam also realize what she's done, because then she goes to her father and apologizes. हाँ हाँ, एंड शी वाज, वो शर्मिंदा हुई थी, रात को परेशान थी वो। सो यस दैट इज ट्रू। आई वांटेड टू से समथिंग जो मुझे याद नहीं आ रहा। गो ऑन, कीप टॉकिंग। या आई लाइक द वे दे मेड अस थिंक कि शगुफ्ता इज गोना सेव देम, but Yeah. then she didn't. So it was not predictable. I love it कि कोई unpredictable चीज होती है ड्रामे के अंदर, तो अब उसको कुछ और सोचना पड़ेगा कि करे, because I was 100% श्योर ये जाके बचाएंगी, और फिर ये जो है ना अपना धौंस उसके ऊपर करेंगी कि देखो मैंने तुम्हारी बेटी को बचाया, तो अब क्या सोचेंगी। That's और वो going to याद be करती है कि इसकी सास ने कहा था कि तुम नहीं हो, उसके बगैर ही भी आ जाएगी, और उसको हाँ फिर जाके बात yes है। yeah आई लाइक yeah कि वो फ्लैशबैक में अब थोड़ा थोड़ा शगुफ्ता की कहानी भी बता रहे हैं, बिकॉज दे टॉक्ट अबाउट yes बिरयानी, और वो खाना लेकर आती है and उसको हाँ आता है, और वो नहीं खाती है बिकॉज उसने भी इसी तरीके से शायद ये चीजें की हुई हैं। सो हम्म आई लाइक द वे दे आर मैनेजिंग, कि वो हमें आगे भी लेके चल रहे हैं और थोड़ा सा बैकग्राउंड हम्म स्टोरी भी बताते जा रहे हैं। क्योंकि ओवरऑल शगुफ्ता किस तरह ये बनी है, इस तरह वो ये हमें कहानी दिखा रहे हैं, बिकॉज उसकी भी एक जर्नी थी। हाँ यस, ओवरऑल यू वर सेइंग। ओवरऑल एपिसोड सही थी, मुझे कोई इतनी खास इंटरेस्टिंग नहीं लगी। इट वाज जस्ट ओके। It was, yeah, it was okay. It could have been, they could have speeded up the police scene. Okay, अब हम कहाँ जाएं? वी हैव आई थिंक बख्तावर एंड मेरे हमसफर लेफ्ट, राइट? Yes, okay. Bakhtavar and Bakhtu are like this now, okay? And Bakhtavar has won in this episode after many episodes. तो मुझे वो बात अच्छी लगी थी। टावर तो नहीं जीती, बख्तू ने ही उसको रियलाइज कराया, इट वाज बख्तू वो हाँ, बट वो फिर बख्तावर बन के बाहर निकली, मेरा ये मतलब बख्तू था ने उसको कहने बोला कि का। हेलो, तुम इतनी बातें हाँ करती थी, एंड आई लव दैट मैसेज शाजिया। इट इज, द स्टोरी इज सो इंटरेस्टिंग, किस यस तरीके से उन्होंने दिखाया जो तुम कहती आ रही थी अब तक, जो मैं शायद इतना नहीं बिलीव कर रही थी, कि बख्तू हैज बिकम पार्ट ऑफ हर पर्सनालिटी। देयर इज अनदर person growing who thinks he's a who thinks who's making her think she's a man, and या using that facade to get her work done, जो अभी आके बख्तू ने शीशे में उसको बोला, उसको रियलाइज कराया कि तुम, या अगर तुम्हें वाकई स्ट्रांग होना है तो एज अ औरत तुम अपना या लो। हाँ तो इतनी अच्छी बात, इतना अच्छा मैसेज था बख्तावर का, कि अगर औरत को स्ट्रांग होना है तो एज औरत ही स्ट्रांग होना है, तभी चीजें चेंज उसको समझना है कि मैं स्ट्रांग हूँ। इफ शी थिंक्स शी इज वीक देन शी विल बी वीक। और मुझे राबिया ये भी बात अच्छी लगी कि वो बख्तावर बाहर निकली नॉट फॉर दिलावर, नॉट सो दैट शी कुड कन्फेस दैट शी लव्स हिम, बट टू स्टैंड अप फॉर हर राइट्स फर्स्ट। दिलावर तो बहुत बाद में आते हैं, पहले उन्होंने नीचे जाके कहानी सुनाई और फिर शीला को कहानी सुनाई।
although I'm scared for her कि शीदा आगे कुछ करेगा उसके लिए, क्योंकि ये कहना बड़ा आसान होता है औरतों के लिए कि हम अपने आप को वीक नहीं समझेंगे और हम स्ट्रांग होंगे और ये सब बोल देंगे, बट एक्चुअली I am scared for her. I would want कि कोई बैकअप हो किसी तरह, ये करने से पहले वो अपना कुछ बैकअप रखती, बिकॉज उसने तो जाके सिर्फ कह दिया ये। अच्छा, इंटरेस्टिंग ये था कि जब उन्होंने पिछले हफ्ते प्रोमो दिखाया था तो हमें लगा ओ इन लोगों को शायद पता चल गया है, बट सो वेरी हाँ नाइसली डन प्रोमो दैट मेड अस लाइक ओ क्या होगा क्या होगा। लिटरली बख्तावर आया, मैंने कहा मुझे देखना है क्या उन्हें पता चल गया बख्तू और बख्तावर एक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और स्टोरी में और ट्विस्ट आए जो बहुत वो भी इंटरेस्टिंग थे। तो आई रियली लाइक इट कि अब वो थोड़ा थोड़ा हिंट देना शुरू कर दिया है कि जिस तरह वो उसको दिलावर हाथ लगाने का तो एकदम से बख्तू बार बार पीछे हो रही है। so हाँ they've started to give hints to Dilawar कि something is not right. I can't wait for the time जब दिलावर को पता चलेगी बख्तू की हाँ yeah. And So how they going to do it? I'm very interested to know how they going to. मुझे लग रहा है वो खुद ही गैस करेगा, गैस करेगा या उसको शक होगा या कुछ होगा। जो ओनर है उनकी बेशर्मी देखो, जब बख्तावर ने बता भी दिया कि रिश्ता लेना है तो शर्मिंदा नहीं हुए अपनी बीवी के सामने, बड़ी ढिठाई से बोला मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा यस हाँ यस, बीवी बेचारी उसको घर में बंद रखता है, उसको बाहर नहीं निकलने देता और खुद, बट यस इट वाज गुड। दोनों के ऐसी ना, शीदा का भी कोई अपना ही मोटिव था कि इसको मैं इतना बदनाम करूंगा, और इनका भी यही था कि हाँ ये तो बदनाम है, बट लेट्स सी, आई एम ग्लैड शी इज कैरिंग ऑन हर एग्जाम्स एंड हर। शीदे वाला पॉइंट मुझे बड़ा अच्छा लगा जब वो शीदे को जाके बोलती है ना कि तुम हमें बदनाम करके, मुझे बदनाम करके मेरा रिश्ता लेके आ रहे हो। ये that was such a great point कि lot of times आप लड़कियों को इस तरह कॉर्नर कर देते हैं बदनामी और शराफत और ये सब के अंडर में, फिर उन्हीं के लिए रिश्ता भिजवा के हम एहसान कर रहे हैं। तो एहसान कर रहे हैं ना उसकी बदनामी के बावजूद, वो आपका अपना मोटिव होता है कि वो किसी और तरह हाथ नहीं आ रही, तो ऐसे पकड़ो इसको, एहसान भी जताओ और अपनी अपनी मर्जी भी, अपनी अना भी पूरी कर लो। सो बिल्कुल दिस वेरी इंटरेस्टिंग। फिर माँ को भी जो वो बात कहती है कि अगर आप हाँ सपोर्ट नहीं कर सकती तो दैट्स ओके, डोंट डोंट से नेगेटिव थिंग्स, एंड देन माँ को धक्का लगता है और माँ उसको करती है। बट अब चल रही है उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट बख्तावर के अंदर कि वो क्या लेट्स सी कब तक, क्योंकि यहाँ तो वो बख्तावर बन गई लेकिन दिलावर के पास जाके तो नहीं बनेगी, वहां तो वक्त, बट वो सुन लेती है उसका, वो जो वर्कर को डांट रहा होता है वो सुन लेती है कि तुम जो है ना तुमने झूठ बोला है मुझसे, एंड आई कैन नॉट एक्सेप्ट दैट, सो उसकी भी दिमाग में अब चल रहा है थोड़ा थोड़ा। लेट्स सी, सो गुड आई थिंक। मुझे आप बताएं, वो तो अभी नहीं होगा, बट वुड यू हैव सेड कि शी शुड हैव गॉन नाउ एंड टोल्ड बख्तावर, टोल्ड दिलावर हर ट्रुथ, और शुड शी जस्ट लीव द प्लेस? व्हाट डू यू थिंक शी शुड डू? आई थिंक यहाँ एक दिल का मामला है, सो शी इज स्कैर्ड, शी इज स्कैर्ड। बाकी तो उसको इमीडिएटली एड्रेस करना था, बिकॉज ये लोग कह रहे थे कि यहाँ शी कैन अफोर्ड टू वेट, देयर इज नो इमरजेंसी ओवर हियर, एंड उसको ये भी है कि मुझे कर्जा वापस करना है, कि मैं काम करके मैं अगर बख्तावर बन गई तो ही मे बी ही विल नॉट कीप मी, मतलब आई दे हैवंट शोन दैट, बट आई एम थिंकिंग कि बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही होंगी। लेकिन So, अगर वो उसको बता दे तो यू थिंक दिलावर उसको नहीं रखेगा? आई थिंक दिलावर विल स्टिल कीप हर, but she doesn't know that. Yeah, yeah. yeah. So that would have also been an interesting twist के दिलावर yeah. रख लेता, हाँ We रख लेता उसको एज अ गर्ल रखे। sorry, before I go to we go to मेरे हमसफर, I want to appreciate Yumna Zaidi's performance. I think हम हर हफ्ते करते हैं, but I Yeah. cannot कि मैं, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी शाजिया, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, मैं बस ड्रामा देख रही थी and I was like she's doing an amazing job. जब वो बख्तू माँ से बात कर रही होती है और वो रो रही है और उसके होंठ हल्के से रो रहे हैं, जब वो पाँव दबाते वक्त जो उसकी हालत है, जब वो दिलावर को बोलती है बख्तू के मुझे पाँव नहीं दबाने, एक आंसू निकलता है। अमेजिंग परफॉर्मेंस, such a heart-winning performance by Yumna Zaidi, and she is proving that she's the queen of expressions, and Yes. she can do any role with such finesse that मुकाबला नहीं है, और वो आपको, she will make you believe in that character and what is going on with that character and that character's emotions. So I like the expression of गुस्सा also that she was giving, जो वो गुस्सा दिखा रही थी ना जब वो लैंडलॉर्ड बोले चला जा रहा था और सीधा बोले चला जा रहा था, मुझे वो बहुत। एंड राबिया, आई जस्ट थॉट इन रिस्पॉन्स टू योर क्वेश्चन, तुमने कहा था यहाँ तो सबको पता है ना कि देयर इज अ बख्तावर इन द हाउस, मतलब उसके नेबर्स को, शीदा को, उसके दिलावर के घर में इतने तो किसी ने नहीं देखा बख्तावर को, सो फॉर हर टू गो एंड एक्सप्लेन टू हिम
फिर उसके अब्बा को, उसकी अम्मा को, वो जो बाहर जो सब काम कर रहे हैं, जो उसके शक कर रहे हैं उसके ऊपर, वो सबके सब विल हैव टू बी टोल्ड, एंड आई थिंक इट्स अ बिगर नहीं, प्रॉब्लम। I don't think so. I think she can just go to Dilawar, tell him कि मेरी ये मजबूरी थी, इस तरह ऐसा होती तो मैंने एज अ मर्द बन के किया, मुझे घर वाले वो लैंडलॉर्ड जो था मुझे रहने नहीं दे रहा था, तो मैंने ये किया, फिर मुझे मिल गए और मैं नहीं निकल सकती थी इस आइडेंटिटी क्राइसिस से, अब मैं ये स्टेप ले रही हूँ। वो कहता ठीक है, अब तुम नेक्स्ट टाइम एज बख्तावर आओ, एंड बख्तावर आ जाओ। इंट्रोड्यूस्ड चलो एवरीबडी। वो वक्तू जा चुका है, उसको मैंने निकाल दिया, ये बख्तावर है। चलो, ये आपने पूरी कहानी खत्म कर दी यहीं, तो फिर आगे कैसे चलेगी नहीं, कहानी? वहां चलेगी फिर बख्तावर तो उसको, हाँ बिकॉज अभी हाँ देखो, ही रिस्पेक्ट्स वक्तू अ लॉट, ही लाइक्स, बट ही ऑफ कोर्स ही थिंक्स ये तो मर्द है ना, ये तो एक छोटा लड़का ही सब। जब एक लड़की नजर आएगी तो ये फीलिंग्स डिफरेंट हाँ, उसकी वो हो जाएंगी, डिफरेंट होगी या एक डिफरेंट दोस्ती मोहब्बत कुछ भी इनिशिएट हो सकता है। हाँ, कमरे में लेके कपड़े नहीं जा सकती फिर वो। ओके, गोइंग फॉरवर्ड, हाँ, या मेरे पास तो वी वो हैव, वर्जन 2 बन सकता है मे बी, या फिर आप कुछ दरार, चलता आजकल ही तो है। दरार में भी चीजें हो रही हैं, चलें। हाँ, दरार में काफी कुछ हो रहा है जी। ओके, मेरे हमसफर। हम्म। So Rabi was so excited जब when they had the baby कि रात को मैसेज आया कि no, we have to post, they have a baby, we have to post. तो it was, yes, a very very sweet moment, बहुत प्यारा, और मुझे बेस्ट मोमेंट लगा जब उसने अजान दी कान में। I think that was just priceless, that moment, and I don't know how many people it resonated with, so many people at that, बहुत real genuine moment था वो which they got on screen, and very very well performed by Farhan Saeed. ये अच्छी एपिसोड थी, बड़ा मजे की एपिसोड थी, आई रियली। शाहजहां की तो जो चालाकियां और जो उसकी कंस्पिरेसीज है वो रुक ही नहीं रही हैं, कि उसने फोन को वकास को घुमाने की कोशिश की, बट शुक्र, एंड आई वाज लाइक नो, अगली गई, not again. नहीं करना, आई डोंट वांट दैट हैपनिंग, आई वांट वकास एंड और वकास के पेरेंट्स कितने अच्छे थे। हाँ, अच्छा, उन्होंने वहां भी आके हंगामा कर दिया। में आके करती है तो चुप करके बैठे हुए सब, भाई उस वक्त उसको डांटा क्यों नहीं पकड़ के? Yes. वो मुझे नहीं अच्छा लगा, आई थॉट वो डायरेक्शन हाँ हैव इम्प्रूव्ड इट, दे डिडंट हैव टू शो इट कि वो चुप करके सुन रहे हैं, उसको पहले ही निकालते। अच्छा, हाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात उन्होंने जो कारमा दिखाया कि रूमी खुद एडमिट कर लेती है कि मैंने ये किया, आई डोंट मिस दैट थिंग। वो जो उन्होंने अलग अलग जगह पे शूट किया हुआ, दैट वाज क्वाइट ऑब्वियस कि रूमी वहां नहीं थी, और थोड़ा ऑकवर्ड भी लग रहा था। आई विश उसको थोड़ा सा बेहतर एडिटिंग में और करने में, बट आई वाज सो ग्लैड कि फाइनली ये बात खुली। और फिर जो रईस का दिमाग घूमा, यू थिंक रईस शुड डाइवोर्स शाहजहां? वाज दैट द परफेक्ट सजा फॉर हर? So, if Rais does want to divorce Shahjahan, there are two things. Number one, गुस्से में कोई चीज नहीं करनी चाहिए, तो वो टाइम नहीं था करने का। नंबर टू, रईस को अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, क्योंकि रईस ने शाहजहां को जहां अपनी जरूरत थी शाहजहां को शेयर दी थी। उसने आंखें बंद कर ली थी जब उसको हाला के साथ जो ट्रीटमेंट हुआ था, उसी के घर में ट्रीटमेंट हो रहा था, उसी के भाई के पैसों से उसका घर चल रहा था। He let all that happen. He let Rumi get away with murder every time. अगर वो उस घर के सरबराह हैं, तो ये सब चीजें जो हो रही थी समीन और रूमी में और हाला में, ये नहीं होनी चाहिए थी। He let Shahjahan bully and abuse that child. So Shahjahan could not have gotten away with it. And making Shahjahan what she was by hitting her repeatedly, और उसकी जो भी उसने बेइज्जती सबके सामने करी, so Rais is equally to blame for this. या बिल्कुल तुम सही कह रही हो, रईस इज दैट। एंड ये जो मैंने रिव्यू में भी लिखा था, आई डोंट वांट टू रिपीट व्हाट यू सेइंग, कि इट्स नॉट फेयर कि रिस्पांसिबिलिटी किसी भी बच्चे की बुराई की वो सिर्फ आप माँ पे डाल दें, बाप को हटा दें, स्पेशली इस चीज। और ये हमजा की कैरेक्टर ने भी अम्मा से कहा था, which I didn't agree with. सो दैट शुड नॉट हैव बीन देयर। आप सब घर में मौजूद थे, वो मतलब किसी को पता ही नहीं वो कहाँ जा रही है, कॉलेज जा रही है, कैसे जा रही है, हाउ कैन इट, जवान लड़की है। So that was something that I wish कि drama had also addressed that maybe every episode में आए, because Shahjahan alone is not responsible for whatever was happening, you know, and Shahjahan को बनाने में रईस का और उसकी माँ का बहुत बड़ा हाथ था। So that was something that I wish they had taken care of. Now coming to Hala and Hamza, बहुत cute moment थे, conversation बड़ी interesting थी। हाला शॉक में चली गई जब उसको पता चला कि ये खुर्रम के पोहाल, and I really like the way हाला की expression और tones change होते हैं जब उसको बताते हैं ना। Do you think he should have told her? Was there any need to tell her?
I didn't think he didn't think she would react like that because उसके दिमाग में ये था नहीं, तो उसने अगर उसको पता होता शायद ना बताता, तो उसने एक नॉर्मल तरीके से बता दिया। एंड ऑल्सो हालांकि सेल्फ एस्टीम वी हैव टू अंडरस्टैंड अब ऊपर आई है, अभी तक नहीं थी। शी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट हरसेल्फ। हाला अब समझती है कि आई नीड टू बी लव फॉर माई सेल्फ, पहले नहीं समझती थी। तो हाला का रिएक्शन भी उसके लिए काफी एकदम से वो आई थिंक सरप्राइज्ड हो गया होगा हमसे। पर देने की क्या जरूरत थी, ये सब बातें तुम्हारी सही है, वो देने की क्या जरूरत, हाँ, इट जस्ट हर्ट हाला इवन मोर दैट यू डिडंट, yeah. कि मेरी बात का यकीन नहीं था, तुमने डाउट किया इसीलिए तुम गए, हम्म, यू नो दैट्स व्हाई यू वेंट। हम्म, उसको आप जिस तरीके से भी कहें, तो ये मुझे था, एंड देन फिर ये भी कि बट खैर अगेन मैंने ये अपनी ट्वीट में और अब ऐसे ही लिख दिया था कि हाँ, हाला हैव फॉरगिवन हिम। तो इतने मुझे लोगों के नीचे मैसेजेस आए कि डोंट स्टार्ट दिस रिलेशनशिप में ये होता है। भाई मैं ऐसे कभी कभी लिख भी देती हूँ, इट्स अ क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग कि हाँ, अगर yeah. हाला पे शक किया हमजा ने, तो क्या हाला उसको इतने आराम से माफ कर दे, और क्यों शक किया। बट येस आई डू फील, ऑफ कोर्स माय आंसर वुड हैव बीन कि नहीं, इसमें इतना एक्सट्रीम पे जाने की जरूरत नहीं है। देयर वाज अ लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड हाला ने भी सही तरीके से उसको चीजें एक्सप्लेन हम्म, नहीं की थी, नहीं करी थी। you know, and then yeah, and I think Hamza deserved another chance because Hamza has done a lot of great things also। तो गलती हो जाती है कि आपने शक कर लिया। बट बात मेरी वही थी ना, जो हम पहले भी शायद 2 एपिसोड से कह रहे हैं, कि ये तो हम्म, कहते हैं कि मर्द ने क्यों शक किया, बट आप ये नहीं देख रहे कि सॉरी मैं मिक्स कर रही हूँ, हब्स में हमने ये बात की है, हब्स के रिव्यू में हमने ये बात की थी कि बासित उसको शक कर रहा है, तो हम कह रहे हैं वाई इज बासित डाउटिंग हर या शक, बट हम देख रहे हैं कि आयशा ने क्या गलती की है। तो यहाँ पे भी मुझे वही लॉजिक या वही थॉट नजर आई कि हाला ने भी तो उसको बिठा के कभी एक तरीके से पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं दी या नहीं बताया क्या हुआ ना, वो नहीं करती थी। Okay, there's a difference here, I think, because Hamza was a bit blind to what Shah Jahan was doing, and Shah Jahan had repeatedly done a lot of things. The fact कि Shah Jahan ने उसको बुलाया खुर्रम के घर पे, all those things should have had some alerts for Hamza, which it didn't. हालांकि जो जर्नी है ना, वो बड़ी एक नेचुरल जर्नी प्रोग्रेशन में गई है। हमजा हैज बीन लाइक दिस, नो कभी आई इस तरफ, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, so इसलिए it's very easy to blame Hamza. नहीं नहीं It's not that अगर तुम हफ्स के ऊपर आए, it's not that easy to blame Aisha. नहीं नहीं नहीं, आई Okay. थिंक इट्स क्वाइट इजी टू Yeah. ब्लेम आयशा, बिकॉज रात के बीच में आप बात करें, बट इधर में ये जो तुमने बात की है हाँ. ना, वो देखो माँ उसको लेकर आई और उसने वाकई देखा कि वो दोनों कुछ बात कर रहे हैं, तो उसको भी चाहिए था वो पूछता, इसको हाला को भी चाहिए था कि वो एक क्लियर एक्सप्लेनेशन देती। बाद में भी उसने बोला भी कि तुम्हारी माँ झूठ बोल रही है, बट इट वाज ऑलरेडी टू लेट। नहीं मतलब वो माँ के साथ क्यों आई थी वहां? वो उससे पूछा नहीं कि आप कैसे लेकर आ गई थी इसको यहाँ? उसने वो दवाइयां दी थी उसको मिसकैरेज कराने के लिए, उसने कभी पूछा ही नहीं कि कैसे हुआ। अम्मा ने बाहर खड़ा कर दिया था उसको घर से, रात को बाहर भेज के। मैं दो क्यों भी डिफरेंट नहीं? नहीं, आई एम टॉकिंग या अबाउट पॉइंट्स। डेफिनेटली वो हमजा की चीजें उन्होंने गलतियां दिखाई, वो अलग है, बट आई एम सेइंग कि हाला ने भी a lot of times हाला needed to talk to him and hala needed to do the communication which she did not, so बट I राबी उसका हमने कहा था ना, बिकॉज हाला हैज बीन अब्यूज, तो हाला को हम एक नॉर्मल उसके साथ नहीं जज पूरा कर कर सकते। नहीं सकते, यस गलतियां थी। ठीक या है। जब वो कर गई, अब तो हमने हाला की ग्रोथ देखी ना, अब तो हमने हाला का चेंज देखा। जब हो गया या तब भी हाला ने जाके नहीं किया। जहां आप हम्म अपने लिए खड़ी हो रही हैं आई कंप्लीट, बट वहां आप शायद या थोड़ी भी दे सकते थे। खैर, हम्म तो मुझे मुझे ये लगता है, बट कमिंग टू इट वाज अ ब्यूटीफुल सीन बिटवीन द टू ऑफ देम, एंड आई एम ग्लैड कि हाला ने उसको दूसरा चांस दे दिया। और हम्म आई थिंक हाला को शायद ये बात भी हिट की, जो वो कहती भी है कि मैं अकेले से कैसे पालूंगी। शी रियलाइज, यू नो, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। I don't want to say यस that she made that decision because of her child, but sometimes बच्चे ही आपको सही रास्ता भी दिखा देते हैं। So उसने अपना बचपन याद किया, अपनी जिंदगी याद की कि यस मैंने गुजारी, तो एक पेरेंट के ना होने की वजह से बच्चे पे क्या असर होता है, हाला took that decision हाँ। आई and थिंक राबिया तुम्हारी रिव्यू में मुझे ये बात अच्छी लगी थी कि एज अ कपल ऑल्सो दे हैव अ जर्नी, yeah, एंड दिस वॉज द जर्नी जिसमें हम हमजा को बुरा भला कहें या हमें हाला पे गुस्सा आए कि वो रोती रहती है और वो जवाब नहीं, बट टुगेदर दे, बिकॉज इनिशियली तो वो एक दूसरे को नहीं जानते थे एंड नाइदर वर दे इन लव विद ईच अदर, सो इसलिए आई थिंक वहां शक की गुंजाइश ज्यादा हो जाती है जब आप जानते नहीं हैं और आप सुनते हैं। ये नाउ बीइंग वेरी ऑब्जेक्टिव, so their journey has brought them here, whether it is because of the baby or without the baby. लेकिन I think they have reached a point where they can now move ahead. yeah. So And again, yeah. बेबी के होने से मुझे मुझे इसकी खुशी सी ज्यादा ज्यादा थी, बिकॉज हम इतने महीनों से वो कैरेक्टर्स देख रहे हैं,
उनकी एक जर्नी बिकम अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, एटलीस्ट आई डू। सो यू नो जब वो उसमें प्रोग्रेशन होती है और उसमें नेक्स्ट स्टेप होता है, जैसे हीरो हीरोइन जब मिल जाते हैं तो आपको खुशी होती है, तो ये लोग तो बहुत पहले मिल गए, तो वो उनका बेबी आ गई, और वो उसको दोनों बड़े क्यूट से वो करते हैं, और सीन भी इतना अच्छा दिखाया, एंड इट्स ब्रॉट देम टुगेदर। सो आई थिंक इट वाज जस्ट अ वेरी क्यूट मोमेंट, वेरी नाइस, वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी एटलीस्ट, यू नो। It was, yeah. I think all performances were very good. Yeah. And yeah, अब देखो आखिरी one episode left है ना? Yes, yes, yes. Yeah, yeah, yeah. ये वाली आखिरी एपिसोड है आज। आई Yeah. थिंक So you, yeah. दिस वीक आखिरी एपिसोड है। This week आखिरी episode है. But yes, thank you to the writer and the director for taking us on this journey and bringing us to this point. हमने आपको काफी criticize किया on points which I think we still sort of agree on, लेकिन the journey itself was very beautiful in its own way. That is all. Okay. आप लोग बताइए अपने कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा ड्रामा, एंड मेरी शहजादी कैसा लग रहा है, बबाल पे क्या व्यू है आपका, एंड डू नॉट forget to mention in comments what do you think is the name of our new segment. Yes, do not forget. वो गाना कौन सा था? दिल दिल विल प्यार व्यार, मुझे तो व्यार याद आ रहा था। You said जाके प्यार व्यार, शाज़िया इतनी You भूला said- जाके चैट चेक करो, लिखा हुआ है You उसमें। said प्यार डैश एंड कराची। मैं जान के भूल रही हूँ because वो बहुत brainstorming हुई थी उस चैट के ऊपर, so I don't remember the exact thing, but yeah, I saw something on Instagram. ठीक है जी, देखते हैं, शाज़िया को भी नीचे कमेंट्स पढ़ के पता चल जाएगा शायद। Yeah, ओके जी, ठीक है, अपना जाके ख्याल chat check रखिएगा, करो। अपना ख्याल रखिएगा, एंड विल मीट सून इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।